جی ملا اظہر صاحب کیا حال ہیں؟ کرم ہے، کیا حال ہے بتا؟ بہت اچھے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے۔ تو انشاءاللہ و رسول بھی کیوں نہیں کہتے تم؟ کبھی بات کیا کرو، کوئی سے کہنا ہو تو کہ میں انشاءاللہ و رسول کل آؤں گا، یہ کہنا سٹارٹ کب کرو گے؟ اس میں کیا بات ہوگی جو میں نے کہا ہے؟ نہیں، انشاءاللہ و رسول کہنے میں کیا بات؟ چلیے اگر میں نے انشاءاللہ نہیں کہا ایسے کہہ دیا تو اس میں کیا بات ہے؟ انشاءاللہ و رسول کہنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں کیا بات ہے؟ پھر کہا کیوں نہیں جاتا؟ دیکھیے صاحب، آپ نے اعتراض کیا نا تو مجھے وجہ ہی بتائیں، وجہ کیا ہے اس میں؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ رسول کو برابر تھوڑی کر سکتے ہیں؟ نہیں، برابر تو نہیں ہو سکتے۔ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ تو إِنِّي اس میں برابر فَاعِلٌ ہو گئے، ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اس میں برابر نہ ہو گئے۔ کہیے کسی چیز کے لیے کہ کل میں کروں گا انشاءاللہ، اللہ نے خود یہ بتائیں مجھے، آپ یہ بتائیں، میں بات آپ کی جب مانوں گا جب کہ آپ اس کا دفاع کرنے پہلے مجھے بتائیں، آپ نے جو اس کا اعتراض کیا ہے کیا؟ تو یا اس میں برابر ہوگا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، ارے اللہ اور بھائی، اس کے اعلیٰ رسول کا کرم حضرت ہے۔ کی کتاب فتح و رضیہ میں واللہ عالم ہی لکھا ہے، فتوے میں واللہ عالم بالصواب، ارے واللہ یہ و بتاؤ رسول تمہارے اندر عالم یہ نہیں عادت لکھا کیا ہے، ہے؟ جیسے وہ دعوت اسلامی والے لکھوا رہے ہیں واللہ و اس سے رسول کیا مطلب عالم۔ ہے؟ اس سے کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ تو کیوں؟ فتویٰ اللہ اس کے رسول علم میں ارے وہ اسی برابر ہے، موضوع یہ پر مطلب ہوگا۔ ہوتا ہے واللہ و رسول نہیں عالم نہیں، کا وہ مطلب سنیے ہوتا سنیے ہے سنیے سنیے اللہ اس کے سنیے، رسول علم میں برابر جھوٹ ہیں۔ مت بولا کریں، جھوٹ مت بولا کریں۔ وہ کیوں؟ جیسا فتویٰ ہوتا ہے، جیسے کسی نے جیسا فتویٰ لکھ کے دیا، جو سوال ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے جواب دیا جاتا، پھر اس میں ہاں لکھا جاتا واللہ عالم۔ تو وہ اللہ رسول کی بات تھوڑی، مجھے یہ بتائیے آپ، میں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، ہاں، اس میں برابر کیسے ہو گئے؟ اللہ اس کے رسول کا کرم یوں نہیں ہاں، کہنا چاہیے، بلکہ اللہ کا کہاں لکھا کرم ہوا؟ ہے اپنے کہاں لکھا ہوا؟ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں یہ کہہ یہ کہاں سکتے ہیں، لکھا ہوا کہ نہیں کہنا چاہیے؟ یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ تیرا کرم ہے، تو پھر اس کا یا مطلب اللہ یہ تو ہے، کرم فرما سنیے تیرے سنیے حبیب کے صدقے تو فعل میں۔ سنیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے معاذ اللہ تمہارے اچھا، اصول کے مطابق؟ ہاں، یہ تمہارے اپنی اصول کے اپنی مطابق۔ مطلب ہم وہی تو کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ و رسول بھی کہلواؤ مجھے پھر۔ یہ بتائیے پھر کلمے میں کہاں ہاں، تو برابری ہم ہوئی ہے؟ نے کب منع کیا ہے کہ ماشاءاللہ و رسول نہ کہلواؤ؟ کیا نہ کہلواؤ؟ ماشاءاللہ و رسول بھی مجھے کہو، اس کا جواب آپ انشاءاللہ دیجیے و کہ رسول یہ کہو، کہاں لکھا ہوا ہے، کس ہمارے 1400 سال ماشاءاللہ و سے؟ رسول کہا کرو۔ سنیے، تم پرانے عالموں کی بات کو کہتے ہو نا، پرانے عالموں کی بات مانیں گے؟ واللہ و رسول کسی عالم، پھر اعلیٰ پرانے حضرت نے عالم واللہ کی، و رسول عالم کیوں نہیں لکھا؟ ارے یار میری بات سنو، مجھے یہ بتاؤ کسی یہ پرانے اعلیٰ عالم حضرت کی نے کیوں نہیں لکھا کہ اللہ اس کے رسول کا کرم ہے؟ کہاں بہت لکھا؟ بڑی بتاؤ کمی ہے تمہارے اندر، بتاؤ یہ آپ، تمہارے اندر بہت بڑی کمی ہے، پہلے سنتے ہونی بات کو بیچ میں بول جاتے ہو۔ سناؤ۔ مجھے آپ یہ بتائیں، آپ نے اعتراض کیا، میں نے یہ کہا اللہ اور اس کے رسول کا، اللہ اور اس کے رسول کا، پہلے بات کو سمجھو، اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے رسول کون ہے؟ کیا اللہ کے رسول اللہ ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہاں ہاں ہے، اللہ اور اس کے رسول کون ہے؟ ہاں اور میں نے کہا نا بیچ میں نے اور لگایا، ہاں، اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اعتراض کیا، اب اگر آپ نے اعتراض کیا تو یہاں اگر برابر ہو رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہاں بھی تو برابر ہو رہے تھے، اگر یہ اصول بناتے ہو تو آپ۔ لیکن نئے نئے طریقے ایجاد نہیں کرنے چاہیے۔ نئے طریقہ کہاں عام ہے؟ طور سے یہی کہا جاتا ہے الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ نیا اب طریقہ اس کہاں میں ہے؟ مجھے آپ آپ کہو یہ گے دکھلا دو، نہیں، اللہ کسی کا بھی شکر ہے، پرانے اس کے اکابر کی رسول کتاب کا میں یہ شکر ہے، اللہ اس کے رسول کا شکر ہے، ایسے کہنے کا حکم نہیں ہے۔ سنیے، آپ مجھے یہ دکھلا دیں کسی بھی پرانے اکابر کی کتاب میں، آپ کہتے ہیں نا پرانے اکابروں کی بات مانیں گے، تو آپ دکھا دو اللہ اس کے رسول کا شکر ہے، کسی ولی نے جائز ہے؟ کہا؟ جائز ہے؟ نہیں، بتاؤ کس نے کہا کون ہے؟ کہتا کہ ناجائز ہے، کہاں حرام ہے؟ لکھا ہے؟ کس نے کہا ناجائز حرام ہے؟ فقہ کی کس کتاب میں؟ بخاری میں، دیکھیے مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، ابو داؤد شریف میں، جس کہاں بات لکھا ہے؟ کے لیے جو بات قرآن سے یا حدیث سے نہ بتاؤ، ٹکراتی ہو مشکوک شریف میں کہیں وہ لکھا جائز، ہے؟ وہ جائز ہے۔ کہاں جو لکھا کام مشکوک شریف میں؟ قرآن سے نہ ٹکراتی ہو، حدیث سے نہ ٹکراتی ہو، وہ بات جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں؟ یہ آپ نئے اصول آپ بناتے ہو، اگر ایسا ایسا کچھ ہوتا کیا کہ تو نئی نئی باتیں کی آج جا رہی کے ہیں۔ لوگ جو ہیں کتنی باتیں ایسی نئی دین میں قائم کی ہیں جو وہ نہیں کر پاتے۔ ہاں؟ علم نحو سکھایا جاتا ہے، علم نحو ہاں، نہیں سیکھ پاتے، کیونکہ اچھا، مطلب یہ نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ نبی نے کیا ہے، نہ صحابہ نے کسی کو کرنے کا درس دیا ہاں، ہے کہ آپ علم نحو سیکھنا۔ اصلی میں یہ ہو رہا مفتی ہے، کی سند دی جاتی ہے، اس کے پگڑیاں باندھی جاتی ہیں، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں حدیث میں۔ ہے یہ نا؟ باتیں آپ نئی مت سکھایا کرو، لوگوں کو گمراہ کیوں کرتے ہو؟ اور آپ کو معلوم ہے جی کاشی پور میں 4 کافر امامت کر رہے ہیں کم بیش۔ اب مجھے یہ بتلاؤ جو تم نے میرے پاس پوسٹ لکھ کے بھیجی اس میں کیا اعتراض ہے آپ کا؟ نہیں، 4 کافر کون سی پوسٹ؟ جو تم نے لکھ کے بھیجی میرے پاس، میں نے کب بھیجی؟ ارے بھیجی نا مفتی ذوالفقار خان نعیمی کے بارے میں۔ ارے بہت بدنام ہو چکا وہ تو، کون ہے امام ہے نا مجاہد ملت تحسین صاحب کے مرید ہیں، وہ مولانا مناظر صاحب مجھے جام آپ یہ کے۔ بتائیں کہ آپ نے اس پہ
जो लिख के भेजी कि देखिए जनाब क्या हो रहा है जनाब, तो उस पर क्या एतराज है आपको? अरे तो वो तो उनके ऊपर जाने क्या क्या, वो तो कह रहा है कि अगर कोई देवबंदी मुझसे पूछने आएगा कोई बात तो मैं तो हदीस बना के पेश कर दूंगा। और अल्लाह नहीं के नहीं, रसूल फरमाते हैं जो मैं इतना झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए। ये और झूठ वो बोल रहे हो आप, जुल्फकार ने कहा झूठ कि बोल अगर रहे हो कोई आप, देवबंदी मुझसे पूछेगा तो मैं तो हदीस बना के पेश कर दूंगा, बाद झूठ में बोल देख रहे लेंगे, तौबा हो, कर झूठ लेंगे। बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ऐसी कोई बात ही नहीं है उसमें। वो लिखा है ना उसमें, नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हो आप। तो उसमें सवाल में अच्छा आप लिखा, ये फतवे बताओ, के सवाल में। आप ये बतलाओ कि आप सारी हदें पार करोगे? नहीं, कशीपुर वालों से कहो ना, आप जाके जो काशीपुर वालों ने जामे ये मस्जिद के लिखा इमाम है है झूठ कि बोल रहे हैं। सैयद अरे सैयद मौलाना मुनाजिर हुसैन साहब झूठ बोलेंगे, तहसीन मियां सुनिए साहब मेरी के बात, मुरीद है। अरे सुनिए तो इतना झूठ क्यों बोलते हैं आप? क्यों झूठ बोलते हैं? जलील रुसवा होने के लिए खाली मुली झूठ बोलते हो आप। तो उसमें ये मुनाजिर लिखा साहब हुआ है झूठ बोल रहे हैं। सैयद की सियादत जब तक बाकी रहेगी जब तक वो गुस्ताख ना हो। अगर वो गुस्ताखी न अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखी करता है तो वो लायक ताजीम नहीं है। वो तो काफिर क्या हो कितना जाता भी है, सैयद है तो वो काफिर हो जाता है सब काफिर हो जाएगा बिल्कुल। है। तो ये वो लिख रहे हैं, उन्होंने क्या गलत लिखा है इसमें? क्या लिखा उन्होंने? यही लिखा है जो मैं बता रहा हूँ, इसका मफहूम यही है। क्या क्या? अगर किसी ने सवाल किया है अरे कि सैयद सैयद की सत्यन हैदर मियाँ को हरामी कहा है उन्होंने। अब सुनो मेरी बात, कह रहा है मैं कि उसमें कोई हरामी नाम हो नहीं, गया। किसी का नाम एक नहीं, झूठ आले बोल रहे हो रसूल आप, के लिए लफ्ज हरामी बोलना, झूठ बोल रहे हो आप, झूठ कौन बोल सा रहे हो। उन्होंने गुमराही इख्तियार की है सैयद सत्यन हैदर मियाँ साहब ने, जो इसने जुल्फकार नहीं मिले ये उनको झूठ बोल रहे हो, नाम दिखला दोगे अस्तगफुल्लाह उसका? हरामी बोला, अस्तगफुल्लाह। उनका सिबतैन हैदर का नाम दिखला दोगे उसमें? हाँ है ना, है ना, झूठ बोल रहे ऑडियो हो आप। ऑडियो सुनो आप, नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हो आप, ऑडियो सुनो ना आप झूठ का सहारा लेते हो, झूठ अरे तो बोलते हो। ऑडियो सुनो ना, इतनी मैंने ऑडियो है। सुनी है, आगे भी सुनी है, नाम किसी का नहीं लिया उन्होंने। सैयद को उसने कहा कि अगर कोई हजरत अमीर मुआविया किसी ये सहाबी की कहते शान में हैं कि गुस्ताखी वो करता है सत्यन हैदर मारने वाले तो नाम बोला, अरे सुनाओ। यार कहीं का भी है, कोई भी है, इसका क्या मतलब है? अगर वो अल्लाह और उसके रसूल की शान में या किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, हजरत अमीर निकालू मुआविया, ऑडियो, निकालू इसी में से अभी। हजरत अमीर मुआविया, हाँ निकालो, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करता है, हद को मतलब फतवे लगाता है उन पर, रुक जा, तो वो अभी लायक निकाल रहा ताज़ीम हूँ, नहीं है। यही बात उन्होंने बयान की है। मुझे बतलाओ, तुमने अभी मैं सलमान निकाल नबी, रहा हूँ ना, ऑडियो सुन सुनो लेना। सुनो, तुमने सलमान नबी को क्या लिखा? शेखुल इस्लाम क्या क्या लिखा था उसे? शेखुल इस्लाम कब लिखा था हमने इसको? क्या लिखा था? अभी तुमने पीछे अभी रिकॉर्डिंग डाली थी उसकी, शेर, शेर लिखा था, शेर। शेर भी लिखा था, शेखुल इस्लाम भी लिखा था। हाँ तो अभी बताओ कि उसकी तुम तारीफ कर रहे हो, वो मरदूद शैतान इस्लाम से खारिज है वो। हजरत कौन? अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी कर रहा था खुल्लम खुल्ला। इस्लाम से खारिज है? इस्लाम से भी खारिज है, हजरत अमीर मुआविया पर फतवे लगा रहा है वो। इस्लाम से खारिज कैसे कह रहा था? हजरत अमीर मुआविया फतवा लगाया उसने। देखो सुनो ये पहले इसका जवाब दो मुझे। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी ऑडियो करे, इसी के अंदर है अभी, जो वो आपको ऑडियो में। माअज़ल्लाह काफिर कहे, वो तुम्हारी नजर में क्या है? मुसलमान है काफिर है? कौन कह रहा है काफिर? सलमान नबी ने क्या कहा है? वो हजरत अमीर मुआविया फतवा नहीं लगाया उसने? हैं? फतवा नहीं लगाया? अमीर माविया पे हाँ, क्या लगाया? उसमें तो तमाम उलमा, पूरे हिंदुस्तान के उलमा चीखे, तमाम हर तबके के उलमा चीखे, देवबंदी भी और बरेल भी तो हैं ही, मतलब बिल्कुल सामने। मगर ये जुल्फकार नईमी साहब तो बदनाम हो गए। काहे से? वो मौलाना मुनाजिर हुसैन साहब से हुज्जत हो गई उनकी। मुफ्ती जुल्फकार खान नईमी मद्दजिल्ला अवाली व नूरानी का वो आज रुतबा है अल्लाह की रहमत से। वो उनकी शान है कि यहाँ नहीं, इस मुल्क के नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क के भी बड़े बड़े उलमा इकराम उन्हें खिलाफत दे रहे हैं। खिलाफत दे रहा है तो यार ऐसे खिलाफत इकट्ठी करने का क्या फायदा? उनकी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। जैसे बुग़्ज़ आला हज़रत में तुम जल भुनकर कबाब हो गए हो ना, वैसे उनके बुग़्ज़ में जले हुए तुम। अरे तो वो भी तो समझ सुलह कुल्ली बना रहा है, हर किसी को, सुन्नियों को तुमने सुलह बात कुल्ली समझी बना नहीं। रहा है। उन्होंने ये कहा है कि अगर कितना बड़ा कोई भी चाहे सैयद है और अगर अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो उसकी ताज़ीम हम नहीं कर सकते, हमें तो ताज़ीम नहीं आला करनी हज़रत ने क्या लिखा है? सैयद काफिर हो जाएगा? मतलब लिखा है कि सैयद काफिर नहीं हो सकता है। कहाँ लिखा? पढ़ो आला हज़रत की अरे यार किताब में बड़े आप। झूठ बोलते, बड़ा झूठ बोलते हो यार। जब भी तो आला ने लिखा मतलब है अल्लाह सैयद की गुमराह शान भी में हो गुस्ताखी जाए, करने वाला, अल्लाह के महबूब की शान में गुस्ताखी ये करने भी वाला लिखा काफिर है नहीं होगा। सैयद गुमराह भी हो जाए तो भी ताज़ीम फर्ज है। हाँ, गुमराह हो जाए ताज़ीम करेंगे। हाँ, तो अभी गुमराह है अगर तो सैयद सत्यन हैदर मियाँ साहब को भी अगर आप गुमराह भी मानते बशर तो भी ताज़ीम फर्ज है आपके ऊपर। तो उन्होंने क्या कहा? उसने सैयद सत्यन हैदर मियाँ को बहुत बुरे अल्फाज में बोला है, बहुत बुरे अल्फाज में। लेता है और मतलब कोई सवाल करता है किसी दारुल इफ्ता से, तो उसमें किसी का नाम थोड़ी होता है, उसमें तो जैल लिखेगा। क्या इन्होंने वहाबी की दावत नहीं खाई है वहाँ काशीपुर में छुप के? नहीं, झूठ बोलते हो। मौलाना मुनाजिर साहब बता देंगे कहाँ कहाँ इन्होंने दावतें खाई। कौन सा मुनाजिर है वो मेरे सामने बुलाओ। और मुफ्ती इफ्तिखार जो इनके खास दोस्त हैं, मऊ रानीपुर में इमाम है, वो दज्जाल जाफरी कौन सा मऊ मुनाजिर है? रानीपुर में, उनकी दोनों बहनें देखो, देवबंदी के घर में नजीबाबाद में काशीपुर के आ रही। मुल्ला सर, हाँ तुम भी झूठ बोलते हो और ऐसी जलील होते रहोगे तुम। तुम्हें जलील करता रहूंगा मैं। बताइए, तुम खुद, तुम्हारा मतलब ये है कि झूठ बता के लोगों को गुमराह करो।
कच बोलते हैं, ये तो बेनियानी वाली तलवार है। जामे अदर मिस्र में सब देवबंदी पढ़ते हैं, कहते हो झूठ बोलते हो। अरे सब देवबंदी पढ़ते हैं, ज्यादातर 99% देवबंदी दर्जे के लोग हैं। ये भी झूठ है तुम्हारा, पहले खड़े हो जाते हैं, अंगूठे ही नहीं ये चूमते भी हैं, झूठ या है वो तुम्हारा, सरमदद ये नहीं भी झूठ कहते, है। उसामुल मेरे अरमैन यहाँ को नहीं का मानते। मेरे और यहाँ वो का ये लड़का ये खुद पढ़ा। किताबें नहीं अब मेरी मानते, बात सुनिए, बरेली वाले चलाते हैं। मेरी बात वो सुनिए, तुम्हारा जामेदर झूठ वाले मानते नहीं है, मसले के तुम्हारा, हालत को नहीं अरे मानते हैं वो यार लोग। सबक पढ़ते हो तुम, ये तो मैं तुम्हारा वो बहुत जानता हूँ जामेदर सबक। वाले मसले के हालत ये को कब सबक मानते किसी हैं? और को जामेदर सुनाना, वाले, ये सबक जामेदर मैं तुम्हारा मिस्र बहुत जानता वाले, हूँ। मुझे ये बताओ तुम कि तुम्हारा झूठ गिनवाऊं मैं? जामेदर मिस्र में सब देवबंदी तुम्हारा करने झूठ के लोग गिनवाऊं हैं। मैं? तुम्हारा पहले झूठ खड़े गिनवाऊं? होते हैं, अंगूठी नहीं चूमते अरे हैं। तुम्हारी मुनाफिकत गिनवाऊं, झूठ गिनवाऊं? नहीं, तुम्हारी मुनाफिकत हम गिनवाए। जामेदर वालों को तुम क्या मानते हो? जामेदर वालों को सुन्नी बनाते हो। फिर हाँ, कभी क्या है यहाँ वो? के कहते हो कि जो पहले खड़ा हो जाए वहाबी है, जो अंगूठी नहीं चूमे वहाबी है, जो उसामुल अरमैन ना माने वहाबी है। और हाँ हाँ, जामेदर में कहाँ मानते हैं उसामुल अरमैन को? काहे को मानते हैं, कहते बिल्कुल हैं? ये बिल्कुल जोखरपुर मानते वाले हैं, मुनाजरा बिल्कुल करने क्यों गए मानते थे वहाँ हैं, पर? बिल्कुल मानते जोखरपुर हैं, वाले मुनाजरा करने क्यों गए थे? बिल्कुल फिर मानते इनको हैं। भगाया नहीं था वहाँ पर कि यहाँ पर अरे झूठ, मुनाजरा अरे मुनाजरा झूठ कुछ बोल नहीं होगा? झूठ बोल रहे हो, झूठ सरासर झूठ। वहाँ के जो शेख थे उन्होंने नहीं भगाए थे इनको कि यहाँ इनकी मुनाजरा सराहना मुनाजरा की नहीं है, होगा यहाँ इनसे पर। तकरीर कराई है, मिंबर पर बिठाया इन्हें। हाँ, झूठ मेंबर बोलते पे हो, बिठाएंगे इनको वहाँ पर, झूठ शेखुल जो अरब बोलते हो, वल अजम झूठ। बनाएंगे इनको। इसी झूठ ने अरबी तो तुम्हारी बोलना कहाँ नहीं से कहाँ आती थी, वहाँ पढ़ रहे कहाँ थे से कहाँ कागल खड़ा कर दिया तुम्हें? यहूदे। कागल इतने यहूदे जलील कैसे रुतबा हो हो चुके हो जाएगा? तुम। अब अपना झूठ सुनो, तुम्हारी मुनाफिकत गिनवाऊं मैं? गिरेमत सबसे के बड़ी हिसाब से कागल यहूदे तुम्हारी कैसे होगा? मुनाफिकत ये कि तुमने उससे वो जो था, वो क्या नाम था उसका, वो भोजपुर का जो था इंतजार, उसके यहाँ तुमने खाना खाया, जबकि उसका काम मैंने जो नहीं है खाना, मैंने नहीं खाना, नहीं खाया। सूद का कारोबार है उसका, नहीं, सूद मैंने का। नहीं खाया, खाना नहीं झूठ बोल खाया। रहे हो, तुमने नाश्ता भी किया उसके यहाँ, कसम खाना खा भी खाया। लेता हूँ, कसम खा लूँ। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर, उसका कसम सूद का खाऊं मैं, कारोबार है। अल्लाह की कसम खाऊं। और तुम तो कसम खा लोगे और झूठ गिनवाऊं तुम्हारा मैं? अरे तो तुम भी खा लोगे, और तुम भी झूठ खा गिनवाओ, लोगे फिर? हम तो लानत भेज देंगे झूठी कसम पर। तो फिर हम भी लानत भेज देंगे झूठी अब कसम झूठ और पर। गिनवाऊं तुम्हारा मैं? तुम मुझ पर झूठी तोहमत लगाते हो कि तुम तेरी ये बहन भोजपुर मानते में। हो सुनो जामे सुनो सुनो मस्जिद, जामे सुनो मस्जिद सुनो सुनो मुरादाबाद सुनो के सुनो इमाम सुनो जो है। सुनो। अरे तुम्हारा झूठ गिनवाऊं मैं, मुनाफिकत गिनवाऊं? मुझे नहीं, कहते ये हो तुम कि बताओ आप। मुझे पहले मेरी बात सुन लो, बाद नहीं, में बोल रहा। पहले मेरी बात सुनो, तुम्हारा मुनाफिकत झूठ गिनवाऊं मैं? पहला तो झूठ तुम्हारा ये कि तुम उसके यहाँ खाना खा के गए। तुमने उस लड़के से जो मैंने उस दिन बात की, डॉक्टर से, मेरा जो भाई है वो, अगर उसको खुद मैंने कहा कि मैंने क्या खाना खाया। खाना खाया हो तो मैं अंधा हो जाऊं, तुमने इकरार आज किया। आज ही अंधा हो जाऊं। सुनो, चलो, दूसरा सुनो, दूसरी सुनो। मैंने अगर तुमने इंतजार किया खाना खाया हो सुन तो लो मैं आज सुन ही लो सुन अंधा लो हो जाऊं, बस इससे सुनो ज्यादा आप सुनो नहीं सुनो कह सकते। सुनो सुनो, तुमने मुझ पर इल्जाम ये लगाया कि और मेरी अल्लाह बहन। मुझे अभी अंधा कर अरे दे। सुनोगे नहीं, सुनोगे चलो, नहीं, अब सुनोगे बस। नहीं। तुमने मुझ पर अब ये तुम इल्जाम झूठा लगाया। इल्जाम लगा रहे हो, या अल्लाह ये मैं ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है तो या अल्लाह इसको तू तुम्हारी आईसी में रिकॉर्डिंग भर्ती कर दे, या इसके तुम्हारी भाई को या अल्लाह आमीन तू आईसी में भर्ती कर दे, या अल्लाह तू आमीन इसकी बेटी आमीन। को आईसी में भर्ती कर दे, या अब अल्लाह मेरा तू सुन उसकी लो। अम्मा को आईसी में भर्ती कर दे, या बस अल्लाह करानी घर पर में आए से अब। किसी को भी, अल्लाह ताहिर अल्लाह ने मैं ऊपर झूठा इल्जाम लगा, तू जानता किसी को भी आईसी में भर्ती कर दे, आईसी में आज ही आईसी में भर्ती हो जाए, या कल हो जाए, या अल्लाह जब भी हो जाए आईसी में भर्ती जरूर हो जाए। मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग सुनवा दूंगा, तुमने इकरार किया खुद। चलो, मैंने तो आईसी का कह दिया है बस। चलो तुमने, अब सुनो, झूठ और अब गिनवाऊं अगर तुम्हारा? आईसी में भर्ती हो जाए तो मुझे फोन कर लेना। अरे यार सुन तो लो, अब जरा झूठ गिनवाऊं तुम्हारा और भी मैं। हाँ। तो मुझे तोहमत लगाते हो कि मेरी बहन वहाबी के घर में है। तुम ये बताओ, जामे मस्जिद का जो इमाम है काजी शेर मुरादाबाद जो है, तुम ये मौलाना तोहमत लगाते हो कि मासूम शाह मुफ्ती साहब, जुल्फ़िकार खान नईमी ने वहाबी के यहाँ खाना खाया। अगर क्या गिनवा खाना दिया वहाँ पर, वो अगर मौलाना मुनाजिर साहब बता दे तो मुकाला करा लूंगा अपना मैं, है। मुकाला करा लूंगा। मौलाना मुनाजिर साहब तो इनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। अरे पढ़ रहे होंगे बनाना मनाजिर की ऐसी मिट्टी काटी। कौन सा बनाना मनाजिर है वो? काशीपुर मालूम है कौन सा खिताब मिला हुआ उन्हें? हाँ। मुफ्ती उत्तराखंड। मुनाजिर साहब को, मौला मुनाजिर को इन्हें मुफ्ती जुल्फ़िकार खान नईमी को नहीं, मुफ्ती मौलाना उत्तराखंड। मुनाजिर इनके सामने वो थोड़ी इनके कुछ है। पैरों के साथ भी नहीं है जिसकी तुम बात कर रहे हो। मौलाना कोई इनका मुनाजिर मुखालिफ के सामने जुल्फकार नहीं है। कोई इनका मुखालिफ होगा। मुखालिफ तो हर दौर में होते अरे हैं। वो सदरुल उलमा के मुरीद है, उनके मेरे आका शागिर्द हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की तमाम लोगों ने। अरे मौलाना मुखालफत मुनाजिर होती आई है। सदरुल उलमा के मुरीद है भाई। मैं नहीं जानता कौन है मौलाना मनाजिर, मैं जानती नहीं उन्हें। यानी जामा मस्जिद के इमाम है, उनको भी नहीं जानते आप? इतना ये मैं भी झूठ जानता है, हूँ। ये भी इतना झूठ है कि आप काशीपुर के पास रहते हो, इन्हें जानते हो, जामा मस्जिद के इमाम नहीं जानते आप। कहाँ की जामा मस्जिद के इमाम है वो? तो क्या वहाँ भी है जिसे आप कहाँ नहीं की? जानते? क्या वहाँ भी है वो? अरे कहाँ की जामा मस्जिद के इमाम है? काशीपुर के ही। मैं नहीं जानता उन्हें बाखुदा। अरे काशीपुर के इमाम को आप नहीं जानते? जामा मस्जिद ना मैं नहीं जानता। वो भी मैं जामा। तुम्हें- तो मौलाना मैं- मुनाजिर का मैं- नाम भी नहीं सुना आपने? ना मैंने सुना मौलाना मुफ्ती जुल्फ़िकार खान नईमी, वो तलवार है आला हज़रत की। मौलाना मुनाजिर हुसैन तलवार नंगी नहीं है क्या? तलवार है, मौलाना नंगी। मुनाजिर हुसैन कट्टर सुन्नी नहीं है? अरे मैं नहीं जानता उन्हें, जब मैं जानते नहीं तो मैं कैसे कहता हूँ मतलब आपसे जो कौन है, कौन है? सुन्नी है उन्हें भी आप सुन्नी नहीं मानते? अरे और क्यों नहीं? मौलाना रिजवान जो मदीना मस्जिद के इमाम है वो? अरे जो सुन्नी हुआ है तो वो मेरा सर का ताज अच्छा, है। जब मैं मौलाना जानता रिजवान नहीं- तो सुन्नी है, वो भी सदर उलमा। जब मैं जानता नहीं, तुम्हें तो सबक याद है, तुम तो वो रखते हो। मुजाहिद जब तुम- मिल्लत है मौलाना रिजवान जो मदीना मस्जिद के इमाम है, फखरे अहले सुन्नत है, वो अब भी सुनो, सुन्नी नहीं है। अब सुनो, मैं तुम्हें और झूठ गिनवाऊं तुम्हारा?
وہ مولانا हाशिम तुमने काशीपुरी मुझसे जो वादा किया वाजिद था अली कि साहब जब मैं काशीपुरी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं, वो भी सुन्नी नहीं है। मेरी बात नहीं सुनोगे मुल्ला अतर तुम, जब तुमने तुम मुझसे ही झूठ वादा बोल किया रहा हो कि आप मैं मौलाना मुनाजिर को नहीं जानता, लानतुल्लाह यानी किसी को कहो तुम आमीन, जामे मस्जिद के इमाम को नहीं जानते हो, लानतुल्लाह तुम वहीं रहते हो, कहो करीब आमीन। में रहते हो, कहते हो मुझे नहीं मालूम मौलाना मुनाजिर कौन है। सुनो सुनो सुनो, लानतुल्लाह अल काज़िबीन कहो आमीन, अस्तगफुरुल्लाह। कहो आमीन कहो। तो वहां से फतवा आ गया इनके खिलाफ, मदर इस्लाम से बरेली से फतवा आ गया जुल्फकार के खिलाफ। अरे तुम झूठ बोलते रहो ऐसी, और झूठ मौलाना बोल बोल के मुनाजिर साहब ने मंगवाया है। तुम्हारे चेहरे पर कोड़ बरसने नहीं, लगा। काशीपुर के लोग अब जमा हो जाएंगे, वो कहते हैं चेहरे पर फसाद कोड़ पैदा बरसने मत लगा, करो यहाँ कौम के अंदर, बरसने लगा इख्तिलाफ तुम्हारे पैदा चेहरे मत करो, वरना तुम्हारे चेहरे जामे पर अजहर कोड़ के बरसने बारे लगा। में बताओ, जामे अजहर भी तुम्हारे हिसाब से मुसलमान नहीं है, जामे अब अजहर के तुम्हारा- बारे में पूछ लेंगे काशीपुर के लोग। तुम्हारा झूठ और वो गिनवाऊं मैं? काशीपुर के लोग कहेंगे अब चल झूठ नहीं तेरा सुनोगे टिकट अपना? में करा रहे हैं जामे अजहर अपनी का, मुनाफिकत नहीं दीना सुनोगे, बनवा जामे मुनाफिकत। अजहर चल, अपनी तो वहां मुनाफिकत जाके नहीं पूरा सुनोगे। रिकॉर्डिंग लेके आ, तुमने जामे अजहर वालों को हाजी- सुन्नी साबित तुमने कर, तू हाजी जैसे अकरम तू से सुन्नी मानता है। हाजी अकरम से ये और वादा 1 किया था लाख कि रुपए जब मैं में उस देने इलाके को में आऊंगा। तैयार हूँ काशीपुर वालों को, मुल्ला सर बशर्ते कि अगर जामे अजहर जाए इसी नियत से तहकीक करने की मुंह नियत बंद से। करो, मुंह बंद करो, मुंह बंद तो करो। 1 लाख रुपए में वादा करता हूँ, मेरी 8852 मेरी सुनो। 53 598, मगर मेरी इसी सुनो। शर्त पर दूंगा मेरी कि सुनो वहां से मेरी। आने के बाद पूरा पोल पट्टा पूरा बयान ये दिया जाएगा मेरी कि जामे सुनो, अजहर मेरी का सुनो, ये हाल है, ये अकीदा है, ये मामलात हैं, पूरा मुंह बंद रिकॉर्ड करोगे नहीं? करके फिर सुनाया जाए, तब 1 मुंह लाख बंद रुपए करोगे दूंगा। नहीं मुल्ला सर, मुंह बंद करोगे नहीं? ऐसे नहीं देने वाला। मेरी सुनोगे नहीं? हाँ, तो अब तुम्हारा और मुनाफिकत गिनवाऊं मैं, झूठ गिनवाऊं? तुमने हाँ, अकरम तुम्हारी झूठ हाजी- में गिनवाऊं? तुम गिनवाओ। कह रहे हो मैं मौलाना मुनाजिर को नहीं जानता, ना मैं नहीं जानता, क्या तुम मैं कहता हूँ जामे अजहर के इमाम लानतुल्लाह उसे नहीं जानते, मौलाना कहो आमीन। रिजवान को तुम नहीं जानते, कहो आमीन कहो। वाजिद अली साहब काशीपुरी जो मुबल्लिग कहो आमीन राजस्थान कहो। थे, उनके लड़के को तुम नहीं आमीन जानते। कहो। मैं ये नहीं, कह रहा तुम हूँ उनके तुमने लड़के को हाजी नहीं जानते, अकरम से वाजिद ये अली साहब वादा किया काशीपुरी था के। कि जब मैं भोजपुर आऊंगा या उस इलाके में आऊंगा तो मुझसे मुनाजरा करोगे बैठ वो कर मुफ्ती सामने। आजम मुरादाबाद मुफ्ती अय्यूब साहब को नहीं तुम जानते तुम? इंतजार के यहाँ हराम का खा तुम गए, मुफ्ती उसके आजम खाना खा लिया मुरादाबाद तुमने, मुफ्ती अय्यूब साहब नहीं नाश्ता को नहीं कर लिया जानते? उसका, नाश्ता कर लिया काशीपुरी उसके यहाँ, जुल्फकार काशीपुरी और ने तुम्हें गरज कितनी नहीं आई? उनकी मुखालिफत हराम किया खाते है, फिर रहे हो तुम, कहा ऐसी कि हराम वो खाते फिर रहे हो। सुन्नियत बर्बाद कर दी मुरादाबाद की, कौन सी किसने? बर्बाद कर दी? तुमने कौन सी आवाज कर दी? काशीपुर में आज देवबंदी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसने कर दी? काशीपुर में कितने देवबंदी हो गए बता? कहाँ हो गए? 30% देवबंद वाले हो गए वहाँ। माज़अल्लाह तुम माज़अल्लाह, क्यों झूठ बोलते हो यार? अरे तुम्हारी ये सूरत तो जसपुर रस्ते पे उनकी मस्जिद है, काशीपुर में तुम्हारी अली खान सूरत है, बाखुदा- अली खान में उनकी मस्जिदें हैं, अली खान में अगर तुम्हें- मस्जिदें हैं। अगर ठाकुर तुम्हें द्वारा किसी में बच्चे को दिखा देवबंद वाले दिया ना, 70% हो गए ठाकुर द्वारा में। खुदा की कसम मुल्ला था, तुम्हें किसी बच्चे को दिखा दिएगा ना तो बच्चा डर जाएगा। तुम्हारी सूरत तो वो 40% नहीं 70% देवबंद वाले हो गए ठाकुर द्वारा में। तुम्हारी सूरत देखने का यही सब बातें सुन सुन के कि यार ये जहाँ देखो वहाँ आला हज़रत का चर्चा, कुरान में अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह कुरान में फरमाता है मेरा जिक्र करो, जिक्रन कसीरा, मेरा बहुत ज्यादा जिक्र करो। सब बुकरत वसीला सुबह शाम मेरी पाकी बयान करो और नबी पर दरूद भेजो। ए ईमान वालों जितना ए ईमान या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा, खूब खूब दरूद भेजो, यानी अल्लाह का जिक्र करो, नबी पर खूब खूब दरूद सलाम भेजो। और ये लोग आला हज़रत की चर्चा रात दिन सुबह से शाम आला हज़रत जो आला हज़रत को न माने मुसलमान नहीं है, यानी साहबा किराम को माने, अहले बैत को माने, औलिया किराम को माने, गरीब नवाज को माने और आला हज़रत को माने जब भी मुसलमान नहीं, जब तक हर बात को न माने, नबी की तरह से हर बात मनवाना चाहते हैं। ये काशीपुर वाले अब इससे सवाल करेंगे जुल्फ़िकार से कि तेरे साथ में मक्कनपुर वाले भी मुसलमान नहीं, तेरे साथ में जामिया हैदराबाद वाले मुसलमान नहीं, तेरे साथ में बदायूं वाले भी मुसलमान नहीं, बदायूं वाले आजाद को नहीं मानते तो वो भी मुसलमान नहीं, तेरे हिसाब से जो है कि सही सकलन मियां, सैयद सकलन मियां आले रसूल थे, हज़रत पीर सैयद सकलन मियां उनका ये मुरीद था पहले, बाद में उनके मुरीदी तोड़ दी। पहले सकलन मियां साहब का मुरीद क्यों बना? ये सकलनी क्यों नहीं कर रहा? जुल्फ़िकार कहीं में ककराली सकलनी, वहीं ककराला का रहने वाला, वहीं के पीर सकलन मियां से पहले सकलनी लिखता था, ये सकलनी लिखता था कि नहीं जुल्फ़िकार? मेरी सुन लो, तो फिर सैयद सकलन मियां रहमतुल्लाह अलैह इसके नजदीक मुसलमान नहीं है, वो भी मशकूक है इसके नजदीक। तो काशीपुर के लोग पूछेंगे कौन मुसलमान है तेरे नजदीक? मुल्ला सर अगर यही देखना चाहता है फिर गोश्त ज़िबा कौन कर रहा है ठाकुर द्वारा में? कौन काशीपुर में कौन ज़िबा कर रहा है गोश्त? काशीपुर में गोश्त ज़िबा कर रहा है, रामनगर में गोश्त कौन ज़िबा कर रहा है? ठाकुर मुरादाबाद में जितने कुरैशी है कौन ज़िबा कर रहा है? मुरादाबाद में कोई ये सब खा रहा है, जाने नहीं मियाँ वाले गोश्त खा रहे हैं। किन का गोश्त खा रहा है? जो देवबंदी ज़िबा कर रहा है उनका गोश्त खा रहा है, अरब में गोश्त खा रहे हैं, अजम में गोश्त खा रहे हैं, अरब में मक्का शरीफ में जाओ, जामिया अज़हर मिस्र में जाओ तो देवबंदी ज़िबा कर रहे हैं। और शकील अहले हदीस जो बरेली का है वो एक्सपोर्टर है, वो अहले हदीस है, उसका ज़िबा उसके अंडर में सब ज़िबा हो रहा है गोश्त। वो हज़रत रज़ा साहब का दोस्त है, उसका ज़िबा खा रहा है कि नहीं खा रहा है उसके दोस्तों का? शकील जो अहले हदीस है कौन बरेली में, और उसको ऐप छुपाने के लिए अज़हरी मियां का मुरीद बना दिया शकील अहले हदीस को। मंदानी मियां खुद कह रहे थे कि ये हज़रत रज़ा साहब का जो दोस्त है, मंदानी मियां ने खुद कहा 3 मस्जिदें बनवाई देवबंद वालों की। हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट अटैक। ये सुना
एक एक पोल खुल रही, अब इस उर्स में पोल खुलेगी। ये जो उर्स आ रहा है आला हजरत का, इसमें कालपी वाले और बरेली कालपी वाले और मसूली वालों की लड़ाई फिर से हो सकती है दोबारा से, कि ऐसे माफ नहीं होगा कि तुमने माफ करवा लिया फिर वही हरकतें। बहुत बड़ी बदनामी की है कालपी वाले मियाँ की, कितनी बड़ी बदनामी की है जनाब मोहतरम कौन है वो गयासुद्दीन साहब की, कितनी बड़ी बेइज्जती की है। ऐसे थोड़ी माफ हो जाएगा, साहब माफी मंगवा ली, वो फिर मुतालबा कर सकते, उन्होंने कहा मैं माफ नहीं करूंगा और फिर दोबारा से वो बात उठा सकते हैं। अभी से उन्होंने शेर जहार के और उसमें बात उठा दी है कि नसब में कोई शबाहत नहीं हो जाती है, शबाहत हासिल नहीं होती है, इशारा कर दिया है। हम सभी तुम खुद दहरी हो, तुम खुद हो झूठे मक्कार हो। तुम जामे अजहर मिस्र वाले को क्या मानते हो? जामे अजहर मिस्र में अगर ये चले गए ना, काशीपुर के, मुरादाबाद के, नासिक के, इंदौर के, रतलाम के, कोटा के, उज्जैन के, इंदौर के चले गए तो कहेंगे वाकई अथर हुसैन काजी सही कहते हैं। जामे अजहर में सब 99% देवबंदी लोग हैं। अगर मैं 1 लाख रुपए दूंगा इंदौर वालों को भी, उज्जैन वालों को भी, रतलाम वालों को भी, मगर शर्त यही होगी इसलिए जाना पड़ेगा कि वहाँ से जाकर खबर आगे बताना पड़ेगा आपको रिकॉर्डिंग करके, और लोगों से भी चंदा में करवा सकता हूँ इसी